ٹیس آف دی ڈربرویلز، تحریر تھامس ہارڈی، مکمل ناول اب اردو زبان میں، پارٹ 2۔ جب سفر کا وقت آیا تو ماں نے ٹیس کو جگایا اور کہا کہ باپ کی صحت خراب ہے اور وہ سفر نہیں کر سکے گا اور صحت خراب ہو جائے گا تو ہمیں کسی ہمسائے سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ شہر لے جائے۔ ٹیس نے کہا کہ اگر اس کا بھائی ابراہم اس کے ساتھ چلے تو وہ گھوڑا گاڑی چلا کر شہر جا سکتی ہے۔ آدھا سوتا آدھا جاگتا ابراہم گاڑی میں ٹیس کے ساتھ بیٹھا اور رات کے اندھیرے میں وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہم نے ٹیس کو بتایا کہ سرائے میں ماں باپ امیر رشتہ داروں سے اس کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ اگر وہ ستاروں پر رہتے تو حالات کتنے مختلف ہوتے، نہ باپ بیمار ہوتا، نہ ماں کو اتنی محنت کرنی ہوتی اور ٹیس کو امیر انسان سے شادی بھی نہ کرنی پڑتی۔ جلد ہی ابراہم سو گیا۔ ٹیس کو گھوڑا چلانا نہیں آتا تھا مگر پھر بھی اس نے اپنا سفر جاری رکھا کیونکہ گھوڑا ان راستوں سے واقف تھا۔ ٹیس یہ سوچتے ہوئے سو گئی کہ شہر میں اس کی غربت کا مذاق اڑایا جائے گا۔ وہ اور ابراہم سو رہے تھے اور ان کا گھوڑا سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک شدید جھٹکے سے یہ دونوں جاگے۔ ان کا گھوڑا غلط طرف سفر کرنے کی وجہ سے ڈاک گاڑی سے ٹکرا چکا تھا اور بہت خون بہہ رہا تھا۔ ٹیس نے ہاتھ سے خون بند کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اس کے تمام کپڑے خون آلود ہو گئے۔ گھوڑا پرنس مر چکا تھا اور خون کا تالاب اس کے ارد گرد بن چکا تھا۔ ڈاک گاڑی کو منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ اس کے مالک نے کہا کہ وہ مدد کے لیے لوگوں کو بھیجے گا اور وہاں سے چلا گیا۔ روشنی نمودار ہونے لگی۔ ٹیس سخت پریشان تھی کہ اس کے سونے کی وجہ سے حادثہ ہوا اور اب ان کا گزارا کیسے ہوگا۔ ایک دوسری گاڑی بہت دیر بعد آئی جو ان کے سامان کو شہر لے کر گئی اور واپسی میں مرے ہوئے گھوڑے کو گھر پہنچایا گیا۔ گھر میں سب کو یہ اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی اور ماں باپ نے ٹیس کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، نہ برا بھلا کہا، مگر ٹیس دل میں اس تمام حادثے کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا چکی تھی۔ باپ نے گھوڑے کی لاش کو کم رقم ملنے کی وجہ سے بیچنے سے انکار کر دیا کہ وہ اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں اور جس گھوڑے نے ان کا اتنا ساتھ دیا اسے دفن کیا جائے گا۔ گھر کے قریب ہی تمام دن کی محنت سے گھوڑے کے لیے قبر تیار کی گئی اور دکھی دل کے ساتھ اسے دفن کر دیا گیا۔ اصل پریشانی یہ تھی کہ اب گزارا کس طرح ہوگا۔ ان لوگوں کے حالات اور زیادہ مشکل ہو چکے تھے کیونکہ باپ بیمار اور سست تھا اور گھوڑا مر چکا تھا۔ ٹیس یہ سوچ رہی تھی کہ وہ گھر والوں کی کس طرح مدد کر سکتی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے گھوڑا مرا تھا۔ اسی دوران اس کی ماں نے کہا کہ ٹیس کو مسز ڈربرویل نامی عورت کے پاس جانا چاہیے جو کہ ان کے رشتہ دار ہیں صرف ڈربرویل ہونے کی وجہ سے، اور اس برے وقت میں اس سے مدد مانگنی چاہیے اور وہاں جا کر کچھ اور فائدے بھی تمہیں مل سکتے ہیں جن کا تمہیں ابھی علم نہیں ہے۔ ٹیس نے جواب دیا کہ ان امیر رشتہ داروں کا اچھے طریقے سے مل لینا ہی کافی ہے، مدد تو دور کی بات ہے۔ البتہ میں وہاں جاؤں گی مگر نہ مدد مانگنے اور نہ شادی کے لیے، مگر صرف اور صرف نوکری کی تلاش میں۔ باپ نے اعتراض کیا کہ اس جیسے اعلیٰ خاندان کے لوگ کسی سے مدد کیسے مانگ سکتے ہیں۔ دوسرے دن صبح کو ٹیس شاسٹن کی جانب روانہ تھی۔ اس کی تمام دنیا اس کا گاؤں تھا اور آج پہلی بار وہ اس مانوس دنیا سے باہر اپنے قدم ایک اجنبی دنیا میں رکھ رہی تھی۔ آخر کار ٹیس اپنی منزل پر پہنچ گئی مگر اتنی عمارت دیکھ کر وہ پریشان تھی۔ کیا ایک پرانے خاندان کی چیزیں اتنی نئی ہو سکتی ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے اور اس کی سوچ بالکل صحیح تھی کیونکہ یہ لوگ اسٹاک تھے۔ مسٹر سائمن اسٹاک نے امیر ہونے کے بعد اپنے ساتھ ایک اعلیٰ خاندانی نام ڈربرویلز کا اضافہ کر لیا تھا اور در حقیقت ٹیس ہی اصل ڈربرویلز تھی۔ ٹیس ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے یہاں رکنا چاہیے کہ واپس جانا چاہیے کہ اسی دوران 23-24 سال کا ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوا۔ اس کے انداز ٹیس کو بالکل اچھے نہیں لگے۔ اس نے کہا کہ مائی بیوٹی، میرا نام مسٹر ڈربرویل ہے، آپ کو مجھ سے ملنا ہے یا میری ماں سے؟
माँ तो बहुत सब बीमार हैं, तो मुझे ही बताएं कि मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। टेस को अफसोस हुआ कि कोई बड़ी उम्र का बुजुर्ग उससे नहीं मिला, बल्कि एक नौजवान जिसके तौर तरीके कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। कुछ हिचकिचाहट के बाद टेस ने कहा कि वो डर्बरविल्स खानदान से ताल्लुक़ रखती है, अगरचे अब वो डर्बीफील्ड कहलाते हैं और उनके घर में अपने अजीम आबाओ अजदाद की कुछ निशानियाँ भी हैं। ओह, पोर रिलेशंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मिलने के लिए आईं, उस नौजवान एलेक ने कहा। टेस उसकी नज़रों से घबराहट महसूस कर रही थी और जल्द अज जल्द वहाँ से वापस जाना चाहती थी, मगर वो बाज़िद था कि उसके साथ कुछ वक्त गुजारा जाए। उसने कुछ फल टेस को दिए और खाने से इनकार पर ज़बरदस्ती टेस को खिलाए। फूलों को टेस के बालों में लगाया। वो टेस के लिए खाने की चीज़ें लाया और जब वो मुरव्वत में खा रही थी तो एलेक सिगरेट के कश लगाता रहा और धुएं के बादलों में नजर आती खूबसूरत टेस को लालची नज़रों से देखता रहा। मासूम टेस को क्या खबर थी कि यही शख्स मुस्तकबिल में आने वाली परेशानी और मुसीबतों की बुनियाद बन जाएगा। एलेक ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि मेरी माँ आपको कोई नौकरी दे सके। उन दोनों ने खुदा हाफिज कहा और टेस स्ट्रॉबेरीज और गुलाब के फूलों से भरे उस बैग के साथ वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई जो उसे एलेक ने दिए थे। सो ये इब्तिदा थी टेस के अलमिया की। सोचने की बात तो ये है कि क्या वजह थी कि उसकी मुलाकात एक गलत आदमी से ही हुई, जबकि ये मुलाकात उस सच्चे और मोहब्बत करने वाले इंसान से भी हो सकती थी जो कि बहुत पहले मे डे डांस की शाम को उसे नजर आया था। हकीकत तो ये है कि दो मोहब्बत करने वाले मुश्किल से ही इकट्ठे होते हैं। एक मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को पुकारता है मगर नेचर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, यहाँ तक कि महबूब को आवाज़ें देने वाला थक कर बुलाना छोड़ देता है और जब वो थक कर लौट जाता है तो अब वो महबूब वहाँ आता है और देर से आने की वजह से अलमिया उन दोनों का मुकद्दर बन जाता है, मगर नेचर और किस्मत तो मुस्कुरा रही होती है। टेस की वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो लोगों की गुफ्तगू से उसको अंदाज़ा हो गया कि उसके कपड़ों पर, टोपी पर, गर्ज हर जगह गुलाब के फूल मौजूद थे और बैग भी स्ट्रॉबेरीज और गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। उसने तमाम फूलों और स्ट्रॉबेरीज को छुपाने की कोशिश की। लोग उसे देखकर खुश हो रहे थे और वो बहुत परेशानी महसूस करते हुए घर पहुंची। जल्द ही एक खत मौसूल हुआ। मिसेस डर्बरविल की तरफ से लिखे गए इस खत में टेस को नौकरी दी गई थी कि वो मिसेस डर्बरविल के चूज़ों की देखभाल करे। टेस ने वहां जाने से मना कर दिया और कहा कि वो अपने घर में काम काज करेगी, मगर माँ के इसरार पर और घर के बुरे हालात देखकर वो मिसेस डर्बरविल के पास जाने पर तैयार हो गई। माँ का ख्याल था कि टेस को बहाने से बुलाया जा रहा है और उसको रिश्तेदारों की तरह रखा जाएगा और उसकी अच्छी जगह शादी हो सकेगी। टेस ने रोते हुए अपने सफ़र का आगाज़ किया। उसके साथ उसके बहन भाई भी रो रहे थे। एलेक खुद शानदार लिबास में मलबूस उसे लेने आया। माँ ने उस वक्त तो खुशी महसूस की, मगर बाद में अपनी बेटी के लिए सख्त फिक्रमंद हुई कि न जाने टेस किन हालात में होगी। अब वो भी रो रही थी। एलेक ने टेस के साथ अपना सफ़र शुरू करते ही अपनी घोड़ा गाड़ी को बेहद तेज़ रफ्तारी से चलाया। टेस के सख्त खौफजदा होने और आहिस्ता करने की दरख्वास्त के बावजूद उसने रफ्तार कम ना की। टेस अपने आप को गिरने से रोकने के लिए एलेक को पकड़ने पर मजबूर थी। एलेक ने टेस का बोसा लेने की कोशिश की, मगर टेस के पीछे हट जाने की वजह से वो गिरते गिरते बचा और सख्त गुस्से में आ गया। तेज रफ्तारी का फ़ायदा उठाते हुए एलेक ने टेस का बोसा ले लिया, मगर इस जगह को टेस ने अपने रुमाल से साफ किया। वो रो रही थी। तेज हवा में उसकी टोपी उड़ी तो गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हुई। टेस ने गाड़ी से उतरने के लिए ये एक चाल चली थी। उसने नीचे उतरकर टोपी उठाई और दोबारा गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया और बाकी रास्ता पैदल ही तय किया। एलेक के बहुत इसरार के बावजूद उसकी गाड़ी में ना बैठी और पैदल उसके घर पहुंच गई। मिसेस डर्बरविल बूढ़ी और बीमार औरत थी। नाबीना होने की वजह से वो चूज़ों को छूकर उनकी सेहत का अंदाज़ा करती। उसने टेस से नौकरों की तरह बात की और ख़ानदानी बराबरी का कहीं एहसास नहीं होने दिया,
मगर टेस ने इस बात को बिल्कुल महसूस नहीं किया क्योंकि वो खुद भी मुलाजिमा बनने का सोचकर वहाँ आई थी। मिसेस डबरविल्स ने टेस से कहा, सीटी बजाना सीख लो क्योंकि ये ज़रूरी है। वो रात टेस ने पहली मर्तबा घर से दूर गुजारी और अकेलेपन में डर महसूस किया, और दूसरे दिन उदास टेस ने सीटी बजाने की मशक शुरू कर दी। ये मुश्किल काम था। एलेक भी वहाँ आ गया और ज़बरदस्ती टेस को सीटी बजानी सिखाने लगा। टेस को सीटी बजानी आ गई और जाते हुए एलेक ने कहा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उससे कहा जाए। टेस चंद दिनों के बाद बहुत महारत से सीटी बजाने लगी और एलेक ने भी हर तरह से उसके करीब आने की कोशिश की ताकि टेस को एतमाद में ले सके। हर हफ्ते की शाम को मिसेस डबरविल्स की मुलाजिम लड़कियां और नज़दीकी फार्म के दूसरे मुलाजिम 2-3 मील दूर वाक़ा कस्बे की मार्केट में सैर करने जाते थे। इब्तिदा में टेस ने उनके साथ जाने से गुरेज किया, मगर फिर बोरियत दूर करने की खातिर वो भी हर हफ्ते उनके साथ सैर व तफरीह के लिए जाने लगी। तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो साथी लड़कियों के साथ ही वापसी करती। एक मर्तबा टेस सैर के लिए गई, मगर वापसी के वक्त दूसरे तमाम लोग नाच गाने में मसरूफ़ थे और उनका वापसी का कोई इरादा नजर न आता था। वो वापसी के लिए परेशान खड़ी थी कि एलेक उसके पास आ पहुंचा। उसने कहा कि प्यारी टेस, घबराओ मत, अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो तुम्हें मैं घर पहुंचा दूंगा। ये बात टेस के लिए और ज़्यादा परेशानी का बाइस थी। उसके साथी जिनके साथ उसकी वापसी होनी थी शराब के नशे में बेहंगम शोर करते हुए नाच रहे थे और उनका वापसी का कोई इरादा नजर नहीं आता था, जबकि टेस वापस जाने के लिए परेशान थी। एलेक मुंह में सिगार दबाए वहाँ पर फिर मौजूद था, जिसने कहा, टेस आओ मैं तुम्हें घर ले चलूँ। टेस ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। लोगों का एक ग्रुप वापस जाने के लिए तैयार था, जिसमें टेस भी शामिल हो गई, मगर सफ़र के दौरान उस ग्रुप में शामिल लड़कियों ने टेस को ताने देने शुरू कर दिए और कहा कि ये एलेक की मंजूर नज़र और चहेती है। टेस उन तानों और उनकी ख़राब जहनीत को बर्दाश्त ना कर सकी और उनसे अलहदा हो गई। जल्द ही वो रास्ता भूल चुकी थी। अंधेरी रात, तन्हाई, और अगर लोग थे भी तो वो जिनके सर पर शैतान सवार था। इन परेशान कुन हालात में एलेक घोड़े पर सवार दोबारा आता नजर आया। घबराई हुई परेशान हाल टेस के लिए इसके अलावा कोई रास्ता ना था कि एलेक के साथ घोड़े पर बैठ जाए। जल्द ही थकी हुई टेस की आंखें नींद से बंद हो रही थीं। उसने महसूस किया कि एलेक उसके नज़दीक हो रहा है तो उसे अपने से दूर किया और सख्त गुस्से का इजहार किया। एलेक ने चालाकी से बात बनाई और कहा कि मैं तो तुम्हें गिरने से बचा रहा था और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। हम रास्ता भूल चुके हैं, मैं जाता हूँ और रास्ता तलाश करता हूँ। उसने टेस को ये बताकर खुश करने की कोशिश की कि उसके बाप को नया घोड़ा और बच्चों को तोहफे मिल चुके हैं। टेस रो रही थी। वो रास्ता तलाश करने चला गया। कुछ देर बाद रास्ते का इल्म होने के बाद वो वापस आया तो चांद बादलों में छुप चुका था। हर तरफ खामोशी और अंधेरा था। टेस सो रही थी और जानवर और परिंदे सब सो चुके थे। टेस का तहफ़्फ़ुज़ अब कौन करेगा? शायद वो